I think we'll complete this unit 2. In the last week, we started this unit, software requirements, analysis and specification. So we will revise and finish today. So requirement engineering, requirements describe what, not how. Okay. In software requirement engineering, some process steps are there. These steps are important. That is requirement elicitation, requirement analysis, and requirement documentation, and requirement review. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन. इन कम्युनिकेशन वी विल डू or we gather the information or requirement from the customer. Okay, requirement gathering is the task. लेकिन ये जो सिंपल टास्क है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये इतना सिंपल नहीं है. उसमें हम इलिसिटेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट उसका एनालिसिस करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिव्यू करते हैं. ठीक है. So requirement engineering is the disciplined application of proven principles, methods, tools and notation to describe a proposed system, intended behavior and its associated constraints. So all these things we are including in requirement engineering, its principles, methods, tools, etc. And SRS is also very important, that is software requirement specification. Okay. Or requirement engineering example, a university wishes to develop software system for library management activities. Okay. Design the problem statement for the software company. यूनिवर्सिटी को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. टास्क ऑफ इट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू think about the activities: issue of book, return of book and query processing. Okay. There are types of requirements. Generally requirements को कुछ टाइप्स में कैटेगराइज किया है. नोन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अननोन रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो नोन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? समथिंग अ स्टेक होल्डर बिलीव्स टू इम्प्लीमेंटेड, उसको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल से थिंग, दैट इज नोन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर. अननोन रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर से रह गए हैं, मिस आउट हो गए हैं. ओके. फॉरगॉटन बाय द स्टेक होल्डर, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बिकॉज needed right now, but they are not needed right now. These type of requirements are unknown requirements. And undreamed requirement, it means stakeholder may not be able to think of new requirement due to limited domain knowledge. मतलब stakeholder को और प्रोजेक्ट अच्छा कैसे हो सकता है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है. ड्यू टू लिमिटेड डोमेन नॉलेज, दैट stakeholder don't know or may not be able to think new requirements, that is undreamed requirement. Again, there are requirements are functional requirement and non-functional requirement. So what are functional requirement? These are the related to expectations from the requirement from the intended software. Functional requirement, जो भी requirements है वो उनके expectations किए गए हैं customers ने.
Okay, they describe what the software has to do. What the software has to do. Okay, they are also called product features. Then what is non-functional requirement? Non-functional requirements are mostly quality requirements. Okay, how well software does and what it has to do. These are the most quality requirements, non-functional. And non-functional requirements for developers, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन से हैं? मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी. तो ये नॉन फंक्शनल मतलब इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, टेस्टेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए. So these are the functional and non-functional requirement types. हाँ, requirement. खादी. Okay, mute yourself. Okay, these are the types of requirement. Then feasibility study. Feasibility study बहुत important है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले. Feasibility study is a study made before committing to a project. Okay, तो इसके चलते ही आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है यहाँ पे समझ में आएगा. Go ahead, do not go ahead, or think again. Okay. क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम सोचते तो बहुत है कि मैं ऐसा बनाऊंगा, ये करने वाला हूँ उसमें फीचर्स, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होते. फिजिबिलिटी स्टडी करना जरूरी है. Elements of good feasibility study: project scope, then current analysis, requirement, approach, evaluation, and review. Most important part in requirement, software requirement is requirements elicitation. Okay, so this elicitation step is more difficult, most critical, most error prone हो सकती है, most communication intensive. इसमें ज़्यादा communication, ज़्यादा इसमें हम लोग communicate करते हैं, heavy communication is there. There are number of requirement elicitation methods. These are interviews, brainstorming sessions, fast, quality, function deployment, QFD, use case approach. हम लोगों ने use case approach भी देखा है last week में. How to draw the use case for bank software, bank app. तो ये theoretical part है पूरा. Interviews में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. Any calculation error is there, any problems with the existing system is there. Okay, so these are the points in requirement elicitation. So you go through this. QFD, quality function deployment. It incorporate voice of the customer. Okay, what is important for customer is the first thing we have to keep in mind for quality function deployment. What is important for customer? So what are the steps in requirement elicitation? Identifying stakeholder, list out requirement, degree of importance to each requirement. क्योंकि ये पूरा theoretical part है. थोड़ा सा मुझे डायग्राम इसमें कंटिन्यू करना है. तो theoretical आप ये लास्ट वीक में हो चुका है पूरा, थोड़ा सा इसमें डिटेल है. सो यूज केस अप्रोच भी हम लोगों ने देखा है. इसमें क्या होता है? एक्टर होता है.
Okay, there are two kinds of actor, primary actor, secondary actor. An actor or external agent lies outside the system model. Okay, actor is outside the system model but interacts with it. Okay, so एक्टर में भी पर्सन हो सकता है, मशीन हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है. सो ये भी हो चुका है हमारा. प्राइमरी एक्टर इज वन हैविंग अ गोल रिक्वायरिंग द असिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. जैसे कि कस्टमर जो था बैंक ऐप में प्राइमरी एक्टर दिखाया था हमने, और बैंक जो था वो सेकेंडरी एक्टर दिखाया था. सो सेकेंडरी एक्टर इज वन फ्रॉम विच सिस्टम नीड्स असिस्टेंस. So that is secondary actor. तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्टर को ऐसे डिफाइन किया था, यूज केसेस ओवल शेप में दिखाए थे, और रिलेशनशिप एक्टर यूज केस एंड रिलेशनशिप लास्ट वीक का आप अगर पीपीटी याद करोगे तो इसमें 3 डायग्राम्स मैंने दिखाए थे, एक्टर, यूज केस एंड रिलेशनशिप. ओके, तो यूज केस डायग्राम फॉर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा एंट्री ऑपरेटर एक होता है एक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर इज वन ऑफ द एक्टर, स्टूडेंट और टीचर इज वन ऑफ द एक्टर. ओके, एंड दीज आर द यूज केसेस regarding that. Maintain student details, maintain subject details, maintain result details. These are the use cases for data entry operator. Okay, so first use case is login. लास्ट लेक्चर में मैंने बैंक ऐप का दिखाया था, आपको याद है या नहीं मुझे अभी पता नहीं. उसमें लॉगिन पहले हम लोगों ने लिया था, उसके बाद लॉगिन के बाद क्या लिया था, जैसे कि पेमेंट चेक करना, विड्रॉ करना, ये 2-3 केसेस लिए थे, फंड ट्रांसफर. तो जो एक्टर जिस यूज केस से रिलेटेड है वहीं पे ये रिलेशनशिप जाएगा. ओके, सो according to this system there is only the role of student or teacher to view the result. Okay, only one use case for the student or teacher. हम लोग सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं, view the result. Okay, student or teacher cannot interact with the maintenance of student details, subject details, etc. ठीक है. Requirement analysis. After requirement elicitation, requirement analysis. What is this? Draw the context diagram, develop prototype, model the requirements, and then finalize the requirements. Okay, आपको एक ऐसा डायग्राम बनाने का है जिससे आपको मॉडल करते टाइम, डिजाइन करते टाइम आपको वो हेल्पफुल रहेगा. कौन से क्लासेस है, कौन से ऑब्जेक्ट्स है, ये सब उसमें आएगा. सो ड्रॉ द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल सिस्टम मॉडल. फंडामेंटल सिस्टम मॉडल. आप कौन सा भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट. मैं उसमें क्या एंट्री करने वाली हूँ और उसका आउटपुट क्या है. दैट इज द DFD, लेवल 0 DFD. ठीक है, तो यहाँ पे DFD के लेवल्स होते हैं. लेवल 0 DFD, लेवल 1 DFD, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5. तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम दीज आर द लेवल्स. अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो 2-3 DFD डायग्राम्स होंगे. Okay, for example, if bubble A has 2 inputs, x1 and x2, so x1 and x2 these are the input and y is the output. Okay,
A should have exactly 2 external input and 1 external output. This is the level 0 DFD. This is the context diagram of result management system. ठीक है, मुझे अगर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का है तो मैं क्या करूंगी, उसका एक DFD क्रिएट करूंगी कि उसमें क्या क्या इनपुट देना पड़ेगा, क्या आउटपुट होगा. सो सी दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एंट्री. एडमिनिस्ट्रेटर उसमें इनपुट कर सकता है. ओके, दैट इज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंट्री. सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंट्री ये एडमिनिस्ट्रेटर करेगा. आपके जो मार्क्स आएंगे, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर मार्क्स एंट्री करेगा. ओके, तो क्या क्या मेरे सिस्टम में कौन कौन से लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा. सो मार्क्स एंट्री ऑपरेटर एक रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर एक रहेगा. मार्क्स एंट्री ऑपरेटर मार्क्स एंट्री करेगा, मतलब इनपुट दे रहा है कुछ. सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंट्री भी आ रही है उसमें. स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रही है उसमें कि स्टूडेंट SC कॉम्प में है या T कॉम्प में, B कॉम्प है, मेक है, IT क्या है, फिर उसका नेम डिटेल्स etc. Then what is the output of this result management system? Student information reports generated. स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट होगा, मार्कशीट जनरेट होगी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जनरेट होंगे. ओके, दिस इज द रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन. अगर आपको रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम अलग कुछ बनाने का है तो इनपुट एंड आउटपुट में भी सम काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर. तो मेरा जो सिस्टम का डायग्राम होगा सेम टू सेम ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बेसिक चीजें जो है इसमें इंक्लूड ही होंगी. ठीक है, इसमें मैं और कुछ भी और कुछ ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि ऑनर कोर्स एंट्री होगी. अभी 3rd ईयर में आपको ऑनर कोर्स है तो मैं एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको दे सकती हूँ, इनपुट आउटपुट. सो दिस इज द DFD. का लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है. देन उसके लेवल्स. मॉडल द रिक्वायरमेंट्स. अभी आपको रिक्वायरमेंट मिल गए हैं, उसको आपको डिफाइन करना है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थियोरटिकल आपके पास डेटा है, लेकिन अभी आपको अगर कुछ सिस्टम बनाने का है तो आप क्या करोगे, उसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाओगे. जैसे कि ये डेटा फ्लो डायग्राम DFD, डेटा डिक्शनरीज एंड ER डायग्राम. तो इसके एक दो एग्जांपल्स लेंगे हम. DFD show the flow of data through the system. All names should be unique. It is not a flow chart. Okay. Suppress logical decisions. Okay. इसमें हम क्या है कि लॉजिकल डिसीजंस हम इसमें पिक्टोरियली शो करते हैं. ओके, some symbols we are using in DFD. तो ये सिंबल जो होता है वो डेटा फ्लो के लिए होता है. दिस सर्कल इज फॉर प्रोसेस एंड दिस रेक्टेंगल इज फॉर सोर्स एंड दिस इज फॉर डेटा स्टोर. ओके, और जितने भी मैंने फर्स्ट यूनिट का सेकेंड यूनिट के PPTs आपको दिखाए वो आपको शेयर किए जाएंगे क्लासरूम पे. अभी आपका एंड सेम एग्जाम हो जाने दो. ठीक है, और उसके ऊपर जब आप असाइनमेंट्स लिखेंगे तो आपको पूरा नोट्स के थ्रू जाना पड़ेगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा. क्वेश्चन आंसर टाइप अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है स्टडी करना. तो डेटा फ्लो यूज टू कनेक्ट प्रोसेस टू ईच अदर. ओके, कि इसका फंक्शन है. परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डेटा टू yield आउटपुट डेटा. दिस इज प्रोसेस. सो वी विल सी
Is there any DFD for quiz software? आप लोगों ने क्विज सॉफ्टवेयर कभी यूज किया है या देखा होगा, तो इसका DFD कैसे बनाया जाता है? जितने ज्यादा आप ऐसे DFDs देखोगे उतने ज्यादा आइडियाज आपको आएंगे कि DFD कैसे बनाया जाएगा, कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कैसा DFD बना सकते हैं हम लोग। ओके, क्विज सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट क्या कर सकता है, क्वेश्चन टेक्स्ट एंड क्वेश्चंस रीड कर सकता है। स्टूडेंट कैन चूज द आंसर। ओके, क्वेश्चन स्टूडेंट कैन चूज आंसर, ये इसके काम है, ठीक है। अभी प्रोसेस क्या हो रही है, जनरेट क्वेश्चंस। जैसे कि आप MCQ एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आप जनरेट क्वेश्चंस, ये एक प्रोसेस होता है। आप जब भी उसमें लॉगिन करते हो तो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो जनरेट क्वेश्चंस, ये एक प्रोसेस होता है। अगर क्वेश्चंस ही जनरेट नहीं होंगे तो आप आंसर क्या सिलेक्ट करोगे? ओके, सो क्वेश्चंस जनरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस। रिकॉर्ड आंसर, मैंने अगर B सिलेक्ट किया, किसी का C सिलेक्ट किया, तो वो मेरा आंसर जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, तो जो आंसर मैंने सिलेक्ट किया है वो रिकॉर्ड होने का प्रोसेस होगा। ओके, उसके बाद इवेल्युएट आंसर। आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है वो इवेल्युएशन होगा। करेक्ट, सिर्फ आप लोग ABCD सिलेक्ट करने के बाद सब कुछ स्टॉप नहीं हो जाता, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, जो सिस्टम करेगा, तभी तो आपको मार्क्स डिस्प्ले होंगे। देन फीडबैक, करेक्ट और इनकरेक्ट। इवेल्युएशन क्या होगा, इवेल्युएशन प्रोसेस में करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट है वो डिस्प्ले होगा। और ये जो डायग्राम, ये जो सिंबल है, ये क्या है, डेटा स्टोर का सिंबल है। ये डेटा स्टोर है, मतलब क्वेश्चंस कहाँ से जनरेट होंगे, क्वेश्चंस बैंक में से। क्वेश्चन बैंक एक वो होगा सिस्टम के पास, तो वहां से क्वेश्चन जनरेट होंगे। सो क्वेश्चन इज द वन डेटा स्टोर। स्टूडेंट आंसर, सबके आंसर एक स्टोर होंगे यहाँ पे, और करेक्ट आंसर भी सिस्टम के पास होंगे। अगर सिस्टम के पास करेक्ट आंसर नहीं होंगे तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा कि ये रॉन्ग है या सही है। सो आंसर भी सिस्टम को देना पड़ेगा, आंसर की बोल सकते हो इसको। DFD फॉर यूनिवर्सिटी कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो ये अलग अलग DFDs है। अगर यूनिवर्सिटी कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाने का है, तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें फील्ड्स रहेंगे, कौन कौन रहेगा उसमें, कौन इंटरेक्ट करेगा, स्टूडेंट है या दूसरा कोई आदमी है। सो ये ऐसे DFDs होते हैं। डेटा डिक्शनरी एक रहती है। ओके, सो डेटा डिक्शनरी हैज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स, कंपोजिट डेटा एंड एलिमेंटल डेटा। डेटा डिक्शनरी मीन्स इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होगा जो आपको लगने वाला है सिस्टम जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी फिर ER डायग्राम वगैरह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी सेकेंड ईयर में। ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, E फॉर एंटिटी एंड R फॉर रिलेशनशिप, ER मॉडल। तो ये एक पिक्टोरियल डायग्राम होता है कि क्या क्या सिस्टम में इंक्लूड होगा। So entities are nothing but things. Attributes are the data we collect about the entities, and relationship provide the structure needed. Let us see.
तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट इज वन ऑफ द एंटिटी, और उसको रेक्टेंगल में ही ड्रॉ करेंगे। एंटिटी जो होता है वो रेक्टेंगल में आएगा। उसके बाद एट्रीब्यूट जो होगा, स्टूडेंट का कोई नाम होगा, स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का कोई क्लास होगा, देन स्टूडेंट का एड्रेस होगा। सो ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट। तो वो होंगे इस टाइप के शेप में, ओके, ओवल शेप। रिलेशनशिप दिखाने के लिए डायमंड शेप यूज किया जाता है, और लाइन जो होता है वो लिंक करने के लिए। तो स्टूडेंट एनरोल हो चुका है किसी कोर्स के लिए, तो कोर्स एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, और इनके बीच में क्या रिलेशन है, एनरोल्ड। सो वी कैन से लाइक दिस, स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स। स्टूडेंट टीचर प्रोजेक्ट, relationships, ER मॉडल, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें के एक दो एट्रीब्यूट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, सो व्हाट इज सिंपल एट्रीब्यूट? cannot be split into further attributes, also known as atomic attribute. ओके, रोल नंबर जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट है। रोल नंबर को और हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो रोल नंबर इज सिंपल एट्रीब्यूट, वी कैनॉट स्प्लिट दैट एट्रीब्यूट फर्दर। लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? जैसे कि इस डायग्राम में रोल नंबर को हम और कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन नेम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ नेम इज पॉसिबल। कैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये जो एट्रीब्यूट है वो डिराइव, मतलब और उसमें डिटेल्स आ सकते हैं। सो दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, नेम इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, ओके। एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट, attributes are derived from another attribute, okay, that type of attribute is called as derived attribute. For example, age, तो वो derived attribute डॉटेड ओवल से आपको डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि जो एज जो होता है हम बर्थ डेट से निकाल सकते हैं। अगर मेरा ज्वाइनिंग डेट आपके पास है तो मेरा एक्सपीरियंस कितना हुआ ये आपको समझ में आएगा। तो एक्सपीरियंस इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कैसे निकाल रही हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। वैसे ही मैं एज कहां से निकाल रही हूं, बर्थ डेट से। सो दिस इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, टाइप्स ऑफ बहुत है इसमें। ये थर्ड ईयर को है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ओके। तो ऐसा आपका ईआर डायग्राम होता है, ईआर डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। तो मैं एक बुक लेने वाली हूँ एंटिटी, तो बुक का ऑथर क्या है, बुक का आईडी क्या है, बुक को कोई आईडी होगा। क्योंकि लाइब्रेरी में आपको पता है कि एक एक बुक को एक यूनिक आईडी दिया जाता है। देन उसका टाइटल होगा, बुक का प्राइस होगा, अवेलेबल है या नहीं होगा, ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो एग्जांपल एंटिटीज रिलेटेड है, ओके। देन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। After completion of SRS document, we would like to check the document for completeness and consistency, conformance to standards, requirements, conflicts, technical error, ambiguous requirement, etc. Okay. Requirement validation, जो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन के बाद एक प्रोसेस है। सो
रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन इसमें किया जाता है, मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टेक होल्डर मस्ट निगोशिएट टू रिजॉल्व द दिस कॉन्फ्लिक्ट, कुछ प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट्स के, ये सॉल्व आउट किया जाता है। देन अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट स्टडी किया जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, जस्ट अ मिनट। वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट, वैलिडिटी मतलब क्या है, उसको चेक किया जाता है। इज ईच रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द सिस्टम और प्रोडक्ट। इज ईच रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट, करेक्ट है या नहीं रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम और प्रोडक्ट, that is validation. To check it, have all requirement has been specified at the proper level of abstraction. This is also a check-in validation. Okay, just a minute, I want to show you SRS. जब लोग आप थर्ड ईयर में जाओगे या फिर फाइनल ईयर में जाओगे, तो थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट सेम को सेमिनार है, मतलब नेक्स्ट सेमिस्टर आपको एक सेमिनार देना है, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर। तो उसमें आपको जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या आता है, फॉर व्हाट पर्पस, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द डेफिनेशन, देन एब्रीवेशंस एक्रोनिम्स है या नहीं, रेफरेंसेस कहाँ से लिए आपने, ओवरव्यू क्या है आपके सेमिनार का प्रोजेक्ट का, द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, ओके, सिस्टम इंटरफेसेस, हार्डवेयर इंटरफेसेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट। So these are the things in SRS. Okay. Introduction. Introduction में आपको क्या लिखना है, the following subsections of the software requirement specification document should provide an overview of entire SRS. तो इसमें पर्पस होगा, पर्पस में क्या लिखना है, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ दिस SRS, जो भी आप सेमिनार है प्रोजेक्ट है उसका पर्पस क्या है। देन स्कोप, identify the software products to be produced by name, identify the software product to be produced by its name, then explain what the software product will and if necessary will not do, exactly उसका स्कोप क्या है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये उसका स्कोप हो गया। ठीक है, तो ये सब आएगा, डेफिनेशन उसके देनी पड़ेंगे, रेफरेंसेस, ओवरव्यू। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली क्या लिखना है, व्हाट यू हैव टू राइट इन ओवरव्यू, ओवरव्यू में क्या लिखना है, सो यू हैव टू चेक दिस वन। ओवरव्यू में क्या, डिस्क्राइब व्हाट द रेस्ट ऑफ द एसआरएस कंटेन्स, ओके, एक्सप्लेन हाउ द एसआरएस इज ऑर्गेनाइज्ड, you have to give the overview of your SRS. Okay. उसके बाद सिस्टम इंटरफेसेस, हार्डवेयर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर
इंटरफेस क्या क्या लगने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। हार्डवेयर इंटरफेस में क्या क्या आएगा? It includes the configuration characteristics. ओके, कौन से डिवाइसेस आपको लगने वाले हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ओके गाइस, ठीक है। एसआरएस के बारे में अभी लास्ट वीक में भी हमारा इसके कुछ कंटेंट हमने कंप्लीट किए थे, सो आई विल एक्सक्लूड दिस वन नाउ। डीएफडी भी हो चुका है, एनालिसिस मॉडलिंग। ओके गाइस, ठीक है। करंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस is a bridge between system description and design model. ओके, मॉडल डिजाइन करने से पहले आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सो जस्ट अ मिनट, I want to show you one diagram that is in this chapter we are using unified modeling language. Okay, तो ये जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूएमएल, there are three building blocks, that is things, relationship and diagrams. ये पीपीटी इसलिए यूजफुल है कि कौन से डायग्राम्स आपको प्रोजेक्ट के लिए बनाने पड़ते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम, ये समझ में आएगा इस पीपीटी से। ओके, सो स्ट्रक्चरल थिंग्स, देन what are the behavioral things, what are the annotational things, grouping things in our project, then what are the relationships. Relationships are like dependency, association, generalization, realization. These are the जनरलाइजेशन। हम लोगों ने एक बैंक ऐप नाम का यूज केस बनाया था हमने, उसमें जनरलाइजेशन मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, जैसे कि मेक पेमेंट, ये आपका यूज केस है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट क्या है, जनरलाइज्ड केस है, लेकिन वो जनरलाइज क्यों है, क्योंकि उसको हम स्पेशलाइज बना सकते हैं। मेक अ पेमेंट, कहाँ से पेमेंट करना है, सेविंग अकाउंट से करना है या दूसरा कौन सा अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ओके, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो ये उसको स्पेशलाइज किया है जनरलाइज्ड केस को। तो स्ट्रक्चरल में क्लास, इंटरफेस, कोलैबोरेशन, यूज केस, कंपोनेंट, नोड, ये सब उसको कैटेगराइज किया है। ग्रुपिंग करना मतलब पैकेज क्रिएट करना। और ये डायग्राम्स हम इसमें बनाते हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, देन स्टेट चार्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम। ओके, सो दिस इज द क्लास डायग्राम। डायग्राम ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको
जब भी कोई कोडिंग करने के पहले स्टार्ट करना है, क्या क्या लगने वाला है आपको सिस्टम के अंदर, तो आप एक क्लास लेंगे स्टूडेंट। ओके, क्लास एट्रीब्यूट हो, उसका नेम एंड रोल नंबर लगेगा, उसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो क्रिएट रिकॉर्ड ये एक ऑपरेशन हम लोग बना रहे, तो वो ऑपरेशन यहाँ पे ऐसे क्लास डायग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट इज क्लास, दिस एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन अंडर दिस। ओके, तो हम लोगों ने ओओपी में पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपका जो नेम एट्रीब्यूट है वो अगर पब्लिक है तो उसको प्लस सिंबल से दिखाना है। रोल नंबर जो है वो प्राइवेट है तो उसको माइनस सिंबल से दिखाना है, और प्रोटेक्टेड है तो उसको हैश करने का है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे उसके नोटेशंस। ओके, सो प्लस, पब्लिक, प्राइवेट, माइनस एंड हैश, दिस वन। ओके, तो एसोसिएशन ये सब पार्ट है। मैं और एक एक्सप्लेन करूंगी, सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में हमें क्या करना पड़ता है कि पूरा अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमने कितने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उनका ऑपरेशनल पीरियड कितना है, उनकी लाइफ टाइम कितनी है अपने प्रोजेक्ट में, और वो कितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं, ये सब हम यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को लेते टाइम उसका क्लास भी लेना जरूरी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। सो स्टूडेंट इज द क्लास एंड सपोज श्री इज द ऑब्जेक्ट। सो आपको यहाँ पे राइट साइड को क्लास, लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट, राइट साइड को क्लास, लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखना है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट और क्लास हो गया। उनका लाइफ लाइन, सेकेंड नंबर है लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन दिखाने के लिए डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो उसका लाइफ लाइन कितना है सिस्टम में। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टर, एक अपना एक्टर रहेगा विद दिस स्टिक मैन शेप डायग्राम। एक्टिवेशन बार, एक्टिवेशन बार क्या होता है, बार मतलब कोई रेक्टेंगल होगा, तो ये एक्टिवेशन बार है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतने टाइम पे एक्टिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस, तो मुझे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में कुछ मैसेज पास करना है। मेरे सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, तो मैसेज पासिंग तो होगा ही 2 ऑब्जेक्ट्स में। उसमें भी सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ऐसे 2-3 टाइप से, रिटर्न, क्रिएट, डिलीट, ये सब। सिंक्रोनस मैसेज मतलब कौन सा मैसेज, कि इसमें सेंडर जो है वो वेट करेगा, वेट फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। तो उसको यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, और ये जो है वो फील्ड एरो है, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस है। इसका मतलब है कि सेंडर जो है वो वेट करने वाला है रिसीवर का, कि वो क्या सेंड करना है, मतलब वो क्या रिप्लाई देने वाला है। और असिंक्रोनस में क्या होता है, डॉटेड लाइन दिखाना पड़ता है इसमें आपको। ठीक है, वो रिसीव करेगा। इन सिंक्रोनस सेंडर वेट एंड इन असynchronous सेंडर नॉट वेट। मतलब पहले ऑब्जेक्ट को असिंक्रोनस में कोई लेना देना नहीं कि ऑब्जेक्ट इसको सेकंड ऑब्जेक्ट उसको रिप्लाई करने वाला है या नहीं, सिर्फ इसको सेंड करना है। डोंट वेट फॉर द रिसीवर्स रिप्लाई इन असिंक्रोनस। ठीक है,
उसके बाद रिटर्न करने के लिए, और ये डॉटेड लाइन है, और हाँ, synchronous and asynchronous. This is the synchronous one with field arrow. Asynchronous is just simple arrow, and this is return. This is return from the receiver. Then create. अगर आप सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्ट का एक्टिवेशन पार्ट दिखा रहे हो, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये एक्टिवेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो आप क्रिएट कर सकते हो। सो फोर्थ वन इज क्रिएट, और नहीं लगता है तो डिलीट भी कर सकते हो विद दिस डिस्ट्रॉय सिंबल। क्रिएट करना है तो क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय करो। ओके, और यहाँ पे क्रॉस कर दो डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट का लाइफ आगे नहीं है। और कुछ एक्टिवेशन दिखाने के लिए कभी कभी सेल्फ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो लास्ट है सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ को अगर डिनोट करना है तो ये जो एक्टिवेशन पार्ट है वहीं से एक एरो निकलेगा और उसको ही जाके मिल जाएगा। दिस इज सेल्फ मैसेज, सेल्फ मैसेज। और ये है डिस्ट्रॉय कर दिया ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ये तो हो चुका है हमारा यूज केस। व्हाट इज इंक्लूड एंड एक्सटेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड क्या है और एक्सटेंड क्या है? एनीवन प्लीज एक्सप्लेन मी। इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा और लास्ट यूनिट कंप्लीट हो जाए, सॉरी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यस, एनीवन? कह रहे बोलो। मैं आपका आज तो सुन रहा है। उस दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स लिए थे तो उसमें ए बी सी डी, तो आयटीचे आहेत बघ वरती दोघं तिघ जण, जी अल्फाबेट तक हम लोगों ने किया था कंप्लीट। जी ए बी सी डी एफ जी एच, यस एच, अल्फाबेट एच। हे बाकीचे दोघं जणांची बीड होती। हरीश, हरीश are you there? हिमांगी, क्या कर रहे हो? yes हिमांगी, Yes, ma'am. what is the difference between include use case and extend use case? ओके, पास करती हूँ। एच के बाद जे है, जिशान। Jishan, are you there? Yes, ma'am. Yes, what is the difference between include use case and extend use case? नहीं आठवत? ठीक है। Yes, नहुष। Yes, ma'am. Yes, extend use case and include use case. This is include. Dotted line from this to this, base case to include case, and extend is this, extend to base case। मतलब बेस केस में से जो निकल रहा है एरो वो इंक्लूड है, और बेस केस में आने वाला जो एरो है वो एक्सटेंड है। लेकिन किस केस में ऐसा होता है? जैसे कि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे इंक्लूड है और यहाँ पे एक्सटेंड है। यहाँ पे इंक्लूड है और यहाँ पे एक्सटेंड है।
तो इंक्लूड कब करते हैं, जब वो केस जो होता है वो हमेशा के लिए मतलब लगने वाला है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, उसकी जरूरत है. ओके, if this use case is in need for this system, then we have to write include. लेकिन कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं या फिर वो केस ज्यादा लगता नहीं है. इन दैट केस वी हैव टू राइट एक्सटेंड. लॉगिन करने के बाद पासवर्ड वेरीफाई करना जरूरी है. जब जरूरी है तो इंक्लूड, और ज्यादा जरूरी नहीं है तो एक्सक्लूड, एक्सटेंड. तो ये डिफरेंस था. जैसे कि ट्रांसफर फंड करना है, तो फंड ट्रांसफर करने के लिए आपके इसमें अकाउंट में बैलेंस तो होना चाहिए. वेरीफाई सफिशिएंट फंड्स, तो ये क्या है, इंक्लूड. यहाँ पे ये केस जरूरी है तो इंक्लूड. ठीक है, अब समझ में आया क्या नमोश? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके गाइज, थैंक यू. ये सब डायग्राम्स आपको याद करना है. और 143 अभी सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं. जस्ट अ मिनट. आपके सिलेबस में एक स्टार यूएमएल करके केस स्टडी दी गई है. ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन. Today's attendance code is 4.